ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا ذوق افزا ہے شفاعت تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ حضرات، آج رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے۔ یہ مبارک مقدس مہینہ ہے جس کی شان میں قرآن کریم کی 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ 3 کے مہینے ابھی تلاوت کی 1 آیت اور باقی ہے۔ یہ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں 4 آیتیں اس مبارک مہینے کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کتنی شان اور عظمت والا مبارک مہینہ ہے، کتنی عظمت والا مہینہ ہے، کتنے مقام و مرتبے والا مہینہ ہے، کیا اس کی شان ہے، کیا اس کی عظمتیں ہیں، کیا اس کی رفعتیں ہیں، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضرات، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے تعلق سے بہت کچھ فرمایا، احادیث طیبہ اس سے بھری پڑی ہے۔ یہ دو رکعت اور طواف کر رہے ہو تو حالت طواف میں نمازی کے آگے سے وہاں گزرنا جائز ہے، سوائے کعبے کے اور کہیں جائز نہیں ہے۔ بہرحال درود پاک پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نانو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر تو آپ نے پچھلے جمعے سماعت فرما لی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ، تمہارے دلوں میں خشیت ربانی آ جائے، تمہارے دلوں میں خوف خدا آ جائے، اس لیے روزے فرض کیے۔ اب سنیں، صرف روزے فرض کیے اتنا کہہ کے چھوڑ نہیں دیا گیا کہ روزے فرض ہے اب تم رکھو، نہیں۔ کب رکھنا ہے، کسے رکھنا ہے، کسے نہیں رکھنا، کسے اجازت ہے، وہ اب بیان ہو رہا۔ فرمایا ایام معدودات، سال میں 363 دن ہے، 363 دن نہیں رکھنے ہیں، 363 دن نہیں رکھنے ہیں، ایام معدودات، چند دن رکھنے ہیں۔ سبحان اللہ، چند دن، گنتی کے چند دن، یا تو 29 ہے یا 30 ہے، چند دن رکھنے ہیں، گنتی کے چند دن رکھنے ہیں، ایام معدودات۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ پھر مولا کس کو رکھنے ہیں؟ کیا سب کو رکھنے؟ نہیں، فرماتا فمن کان منکم مریضا، جو تم میں بیمار ہو وہ روزے قضا کرنے بعد میں رکھے گا، جو بیمار ہو وہ روزے نہ رکھے، جو بیمار ہو اسے اجازت ہے کہ روزے نہ رکھے۔ فمن کان منکم مریضا،
फिर दूसरा अला सफरीन, जो तुम में से सफर में हो वो रोजा न रखे, उसे इजाजत है। दो इंसानों की इजाजत दी, या तो मरीज या मुसाफिर। अब मरीज किसे कहते हैं? मुसाफिर की तफसीर में सूरह निसा की तफसीर में बयान कर चुका, फिर भी इंशाअल्लाह मुख्तसर अर्ज करता। मरीज किसे, कौन से मरीज को रोजा नहीं रखना है, कौन से बीमार को रोजा नहीं रखना है? तो वो बीमार उलमा फरमाते हैं कि जिसे तबीब हाजिक यानी मुसलमान डॉक्टर हो, और डॉक्टर भी फांसी पर हाजिर नहीं, जो क्योंकि आजकल तो अक्सर डॉक्टर और अक्सर अतिब्बा वो है कि जो दीन के ताल्लुक से अंगूठा छापे, कुछ जानते ही नहीं है दीन के ताल्लुक से। अक्सर जो दुनिया की बड़ी बड़ी तालीम और डिग्रियां हासिल कर चुके होते हैं, उनको कुरान पढ़ना नहीं आता, उन्हें अतहियात पढ़ना नहीं आता, उन्हें ये नहीं मालूम कि मगरिब में कितने रकात और मगरिब की नमाज कब होती है। ये भी अक्सर हमें मालूम है और अक्सर देखा गया। बहरहाल तो वो तबीब हासिक जो दीन भी जानता हो, रोजे की अहमियत भी जानता हो, रोजे का मकाम भी जानता हो, रोजे का मर्तबा भी जानता हो, अल्लाह के रसूल के फरामीन को भी जानता हो, वो कहे कि तुम रोजा मत रखना, रोजा रखोगे तो बीमार बढ़ जाएगी या बीमार हो जाओगे या रोजा रखने से आप इंतकाल कर जाओगे, उसको इजाजत है कि उन दिनों रोजा न रखे जब तक बीमार है। जब सेहत आ जाए, शिफा आ जाए, तब रोजा रख ले। तब उसमें रोजा रखना जो कजा उसकी है उसकी रखना फर्ज है। नहीं रखेगा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया 60 साल तक जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। एक जगह फरमाया 60,000 साल तक जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। एक जगह और भी रिवायतें हैं, दिगर रिवायतें हैं। बहरहाल जो रोजा छोड़ने की जो सजा है वो बहुत बड़ी है। रोजा छोड़ने की जो सजा है वो बहुत बड़ी है, और रोजा रखने की जो सजा है वो ये है, रब मेरा फरमाता है रोजा मेरे लिए है और इसकी जगह में ही हो। सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया नमाज पढ़े जन्नत मिलेगी, हज करो जन्नत मिलेगी, ज़कात दो जन्नत मिलेगी, सदका दो जन्नत मिलेगी, जिहाद करो जन्नत मिलेगी, ये काम करो जन्नत मिलेगी, फला काम करो जन्नत, तिलावत करो कोई जन्नत मिलेगी, कुरान पढ़ो पढ़ाओ जन्नत मिलेगी, मस्जिद बनाओ जन्नत मिलेगी, मदरसा बनाओ जन्नत मिलेगी। लेकिन रोजा रखो जन्नत नहीं मालिक जन्नत मिलेगा। रोजा रखो तो जन्नत नहीं मालिक जन्नत मिलेगा। इससे बड़ी और क्या जजा है? रब फरमाता है रोजे की जजा भी जाहिर है, रोजे की सजा भी जाहिर है। तो बहरहाल वो बीमार या भी उसे खुद को मालूम है कि मैंने पिछली बार रोजा रखा था और ये बीमारी मुझे लाहक हुई थी रोजा रखने की बिना पे पानी की कमी या भूख की वजह से, अगर ये रखूंगा तो मैं इस तरह बीमार, उसको अंदेशा, कभी शक नहीं, कभी अंदेशा हो तो उसको इजाजत है कि वो रोजा कदा कर ले और दिनों में रोजा रखे, उसे इजाजत है। फिर दूसरा औ अला सफरिन, या मुसाफिर। मुसाफिर किसे कहते हैं? शरई मुसाफिर। आप सुने, ये मसला मैं पहले भी बता चुका हूं, शायद आप भूल चुके हो तो फिर याद ताजा कर ले। मुसाफिर उसे कहते हैं जो घर से निकला इस पक्के इरादे के साथ, तजमजम नहीं, पक्के इरादे के साथ 92 किलोमीटर के इरादे से निकला। कितने किलोमीटर? हाँ बोलते रहे आगे मुझे समझ में, मैं मसला समझा रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा हूं। 92 यानी 92 किलोमीटर जाने के या इससे या इतना या उससे ज्यादा जाने के इरादे से घर से निकला। फिर वो जैसे मिसाल के तौर पर डूंगरपुर है, डूंगरपुर शहर में नगर पालिका की जो हद है, इस नगर पालिका की सरहद से बाहर निकलते ही वो मुसाफिर हो जाएगा। जैसे ही वो नगर पालिका की हद से बाहर निकलेगा वो वैसे ही मुसाफिर हो जाएगा। अब उस पर अगर फजर पढ़ रहा है तो 4 रकात वही है, 2 सुन्नत 2 फर्ज, जोर पढ़ रहा है तो 4 सुन्नत 4 फर्ज जो है उसको 2 फर्ज पढ़ना है, और जो असर में 4 फर्ज है उसको 2 पढ़ना है, ईशा में 4 फर्ज है उसको 2 पढ़ना, बाकी सारी नमाजें पूरी है। अब उसे कहते हैं शरई मुसाफिर, वो उसको कहते हैं शरई मुसाफिर। अब मुसाफिर पर इजाजत है कि वो रोजे कदा कर ले, बाद में जब सफर पूरा हो जाए तब इन रोजों को रखे, या फिर इजाजत है कि वो अब रख ले सफर में, अगर कोई दुश्वारी ना हो तो बाकी इजाजत है कि बाद में रख सकता है। उसे कहते हैं शरई मुसाफिर। जब सफर पे घर से निकले, जैसे इरादे से शहर से बाहर निकले, शहर की हद से बाहर निकले या बस्ती की हद से बाहर निकले, आप शरई मुसाफिर हो गए। अब आप पर शरई सफर के अहकाम लागू है। यह नमाज आप नमाज में कसर करेंगे, रोजा आप कजा कर सकते हैं, कुरान ने इजाजत दी है। लेकिन आजकल तो सफर आसान है,
اس لیے بہتر ہے کہ روزے قضا نہ کرے، روزے رکھنے یہ افضل ہے، کیونکہ قرآن نے بھی کہا ہے اولا سفرین، پھر کہا فعدۃ من ایام اخر، اتنے دن گن لو بعد میں روزے رکھ لینا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اول انا مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ یا وہ بوڑھا، اب غور سے سنے مسئلہ، انسان 80 سال 85 سال 90 سال 95 سال کا ہو جاتا ہے، اتنا بوڑھا ہو جاتا، اب اس میں واپس طاقت آنے کی امید نہیں ہے، اب روزہ رکھنے کی حالت میں نہیں ہے، ایک دم ضعیف ہے، بوڑھا ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا، مگر روزہ فرض ہے، یاد رکھنا معاف نہیں ہوتا۔ معاف کب ہوگا؟ 3، یا تو پاگل ہو جائے تو معاف ہے، یا انتقال ہو جائے تو معاف ہے، یا وہ عورت جن کے ایام مخصوصہ میں معاف ہے، باقی کسی پر معاف نہیں ہے۔ وہ بزرگ ہو گیا، بوڑھا ہے، اب روزہ رکھنے کی ہمت نہیں، بزرگ ہو گیا جسے شیخ فانی کہتے ہیں، تو اس پر روزہ تو فرض ہے، مگر اس کو اجازت ہے کہ جتنے روزے اس کے 30 روزے 29 روزے ہیں تو 30 کے حساب سے وہ فدیہ دیں، وہ فدیہ دے دیں، اور فدیہ دے اور امید رکھے اللہ معاف کرے گا، وہ فدیہ دے، توبہ بھی کرتا رہے۔ پھر فدیہ کیا ہے؟ فدیہ جو صدقہ فطر کا 2 کلو 45 گرام یا 50 گرام گیہوں ہے، وہ گیہوں روزانہ ایک روزے کے حساب سے اس طریقے سے دے دے۔ آپ حساب لگا لیں 30 روزوں کے کتنے ہوتے ہیں، 2 کلو 50 گرام کے حساب سے ایک روزے کا فدیہ دے دے، یا ایک مسکین کو گھر پہ بلا روزانہ اس کو کھانا کھلاتے رہے، یہ ایک روزے کے فدیے میں، یہ ہے روزے کا فدیہ۔ وہ بوڑھا آدمی یا بیمار ہے، وہ رمضان کا مہینہ پایا، بیمار ہو گیا، اب روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے، تو وہ روزے کا فدیہ دے، اس امید پر ہو سکتا ہے کہ اسی بیماری میں دنیا سے چلا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیماری ٹھیک ہو جائے، روزے رکھ لے، دینے کے بعد میں فدیہ دے دے، پھر رمضان کے بعد میں فدیہ دیا، فدیہ دینے کے بعد وہ بوڑھا ٹھیک ہو گیا، اب طاقت آ گئی، ہمت آ گئی کہ روزہ رکھ سکتا ہے، اب اس پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا کریں، اب اس پر فرض ہے کہ روزوں کی قضا کریں۔ تو آپ کہیں گے صاحب پھر وہ فدیہ کا کیا دلایا آپ نے؟ جب روزے ہی رکھوانا تھا، صاحب روزے تو اس امید پہ تھے کہ گارنٹی نہیں تھی کہ ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن یہ تمہارا فدیہ ضائع نہیں جائے گا، کیوں؟ ہم گن کے دیتے ہیں، میرا رب تو بے شمار عطا فرماتا ہے، میرا کریم رب تو بے شمار عطا فرماتا ہے، وہ صدقہ نافلہ میں تبدیل فرما کے تمہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو اس بوڑھے کو اجازت ہے، بیمار کو اجازت ہے، مسافر کو اجازت ہے کہ روزے چھوڑنا نہیں ہے، قضا کرنی، یعنی بعد میں جب سفر ختم ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے، تو اس کو ان روزوں کی قضا فرض ہے کہ روزے رکھنا ہے، یہ فرض ہے کہ ان کی قضا رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ چلے آگے اگلی آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ آخری حصہ، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ لیکن تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، بہتر اور بھلائی یہ ہے اس میں ہے کہ فدیہ بھی دو، بوڑھا بیمار آدمی مسافر آدمی فدیہ بھی دے اور روزے بھی رکھے، بھلائی اسی میں ہے کہ روزے رکھے۔ پھر آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک اور مقدس مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے 4 کتابیں مشہور ہیں آسمانی، یہ تو سارے نبیوں پہ صحیح نازل ہوئے ہیں، لیکن 4 کتابیں بڑی مشہور ہیں، یاد ہے 4 نبیوں پہ 4 کتابیں نازل ہوئی ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے۔ نمبر 1 زبور، نمبر 2 توریت، نمبر 4 انجیل، اور نمبر 4 یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہو۔ اب یہ نہیں پوچھو گا زبور کس پہ نازل ہوئی ہے، زبور حضرت داؤد پہ نازل ہوئی ہے، اور توریت حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ پہ انجیل نازل ہوئی ہے، اور قرآن بولے نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی درود ہے، ایک درود رمضان میں پڑھو گے 1 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب ملے گا، صلی اللہ علیہ۔ بہرحال تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، کب نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں۔ قرآن کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
रमजान का वो मुबारक महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसमें कुरान नाजिल हुआ, फीही हुदल लिन्नास, जिसमें लोगों के लिए हिदायत है, बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, जिसमें फैसले की रोशन बातें हैं। कुरान की सबसे पहली जो 5 आयतें नाजिल हुई, कितनी बोले? 5 आयतें नाजिल हुई। कहा? गार हिरा में। कि कब कहा नाजिल हुई? ये बातें तकरीर नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूं, याद करवा रहा हूं। याद करने इंशाल्लाह काम आएगी, और अगर काम यहां नहीं आएगी तो वहां तो जरूर आएगी इंशाल्लाह। कुरान की 5 आयतें सबसे पहले नाजिल हुई। कहा? गार हिरा में, मक्का शरीफ में। कौन सी आप 5 आयतें? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें गार हिरा में नाजिल हुई। कब नाजिल हुई? रमजान की 17 तारीख को। रमजान की 17 तारीख को। तौरात भी रमजान में नाजिल हुई है, इंजील भी, ज़बूर भी, कुरान, ये सारी किताबें रमजान ही में नाजिल हुई है, क्योंकि रमजान वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ने अपनी किताबें का नुज़ूल फरमाया है। कुरान नाजिल हुआ किस लिए? हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। कुरान नाजिल हुआ लोगों की हिदायत के लिए। कुरान में क्या है? फैसले की रोशन बातें। फिर आगे फरमाता है, अशहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान फ़मन शहीद मिनकुम अश-शहर फ़लयसुम। जो तुम में से ये महीना यानी रमजान का महीना पाए, उस पर फर्ज है कि वो रोजे रखे। क्या है उस पर? फर्ज है कि रोजे रखे। ये नहीं कि दिन पर विमल चबाते फिरो। हाँ, हमें मालूम है, क्योंकि ऐसे ऐसे बदबख्त हैं नौजवान बच्चे, बूढ़े तो बेचारे खाते विमल उन्होंने देखी भी नहीं होगी कैसी होती है, जायका कैसा होता है, लेकिन जवान बच्चे दिन भर नमाज में शौर में आते पिचकारियां मारते हुए। शर्म नहीं आती तुम्हें? कल जनाजे में गया, बसा हुआ दरगाह के आ गए, बोतल लेके पानी पी रहा वो। शर्म नहीं आती? हराम खोरो, रमजान का चांद नहीं देखा तुमने? जिहालत की हद होती है। और हमारी तो और साहब गर्मी में लखने वालों ने लोगों ने रोजे रखे। आप तो शहर में रहते हो, हम भी शहर में रहते हैं। आप उगरपुर से बाहर निकले, गांवों के अंदर जाए, देहातों के अंदर जाए, लोग रोजा रख के दिन भर खेत में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मशक्कत करते हैं, उनको रोजा नहीं लगता। और ये मेरे बेटे ऐसी में पड़े, इनको रोजे लगते हैं, पंखे की हवा में बैठे रोजे लगते हैं। याद रखना, ये जो रमजान को हम हल्का समझ रहे हैं, अफसोस ये है कि आज रमजान का महीना इबादत का महीना, काय का महीना बोलो? इबादत का महीना। लेकिन हमारा तस्वुर क्या? रमजान का महीना समोसों का महीना है या नहीं है? आप जाकर सब्जी मंडी में देखा सर के बाद में 1 घंटा खड़े रहोगे तो आधा किलो समोसा मिलेगा। इतनी लंबी लाइन। भजिए की दुकान पे जाके देखो। और मगरिब के बाद में, अल्लाह अल्लाह, मगरिब के बाद एक दुकान वाले से पूछा, भाई साहब आपके यहां सबसे ज्यादा बिक्री काय की होती? कहा हजरत 11 महीने में जितनी विमल नहीं बिकती है रमजान में बिक जाती है। बोलो। उधर ने क्या फरमाया? सुमो तसीहो, रोजा रखो सेहतियाब हो जाओगे। या रमजान में बीमार हो रहा है, जबड़े फट रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, दांत काले पड़ रहा है, मुंह में से बदबू आ रही है, वजह के तो विमल में ठोसता जा रहा है, और रात को सोता नहीं है। क्यों? अरे यार विमल खादिम आए गए। याद रखें, यही तो बीमारी की जड़ है। रोजा, रमजान का महीना खाने का महीना नहीं, इबादत का महीना है। हमने समझ लिया रमजान खाने का महीना है। अरे यार खा लो तो दिन को भूख लगेगी। उधर फरमाते सहरी खाओ शिका पाओ। बीमार भी अगर सहरी को हुजूर की सुन्नत समझ के खाए, मेरा यकीन और मेरी जो उम्मीद ही नहीं, यकीन कामिल है कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत समझ के जो सहरी खाएगा अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। लेकिन यहां सहरी खा के बीमार हो रहा है, दिन पर खट्टी खट्टी डकारें लेते हैं। तरावी में आते तो खट्टी डकारें, फजर की नमाज में आते खट्टी डकारें लेते हैं, और डकार ऐसी कि पता चल जाए कि सामने कौन सी सब्जी खाई है। दाल खाई कि मूंग की दाल थी या अरहर की दाल थी, ये भी पता चल जाए। खाना इतना खाओ जितना आपका पेट बर्दाश्त कर सके।
क्योंकि खाने के लिए हम पैदा नहीं हुए, ये याद रखना। खाने के लिए हम पैदा नहीं हुए, खाना हमारे लिए पैदा किया गया है। खाना हमारे लिए है, हम खाने के लिए नहीं है। बहरहाल तो कुरान का समझ कहा समझ जो रमजान का महीना पाए वो रोजे रखे। उस पर फर्ज है कि रमजान के महीने में रोजे रखे। चाहे पूरा महीना बेहोश रहा, एक बंदा अगर पूरा महीना बेहोश रहा, कोमा में चला गया, 1 मिनट के लिए रमजान के महीने में उसको होश आ गया, अब उस पर फर्ज है कि पूरे रमजान की कदा करे होश में आने के बाद। फिर रब कितना बड़ा मेहरबान है, हम उसकी मेहरबानी के फायदे नहीं उठाते, हम तो उसके अजाब को दावत दे रहे हैं। ऐसे करतूत करके हम उसके अजाब को दावत दे रहे हैं। रब फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता। तुम्हें अल्लाह ताला दुश्वारी में डालना नहीं चाहता, अल्लाह तो तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हारे लिए भलाई चाहता है। कितनी आसानी कर दी, बीमार हो तो बाद में रखना, बीमार हो तो बाद में रखना, सफर में हो बाद में रखना, बूढ़े हो छीटियां दे दो, इससे बड़ा और क्या मेहरबान होगा। फिर भी उस करीम रब के, करम वाले रब से, उस रब की मेहरबानी को छोड़ करके रब के अजाब को दावत दे रहे और रमजान की भी हुर्मती कर रहे हैं। ये क्या मालूम है आपको रमजान क्या है? रमजान अल्लाह के नामों में से एक नाम है। इसलिए मेरे आका ने रमजान कहने से मना फरमाया, इसे माह रमजान कहो, रमजान न कहो, क्योंकि रमजान अल्लाह के नामों में से एक नाम है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम पर भलाई चाहता है, कठिन मुश्किलें नहीं चाहता, दुश्वारी नहीं चाहता। वली तुकमिलुल इद्दत वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून। दिन गिनते रहो, जितने रोजे कज़ा हो गए गिनते रहो, बाद में रखो। वली तुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह ताला की हम्द बयान करते रहो, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते रहो, और दिन भर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहो। अल्लाह 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 का जिक्र करते रहो। जब तुम अल्लाह अल्लाह का जिक्र कसरत से करोगे, एक दिन वो आएगा, तुम्हारी आंखें बंद हो जाएगी, तुम्हारा दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा मुस्तफा रज़ा खां ताजदार अहले सुन्नत, आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो आशिक रसूल, अगर उनकी कहानी बयान करो और उन पे ही बयान करता चला जाओ, मेरी आपकी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन मुफ्ती आज़म हिंद की फजीलतें खत्म नहीं हो सकती। वो मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह गाड़ी से उतरते तो अल्लाह, गाड़ी में बैठते तो अल्लाह, हर दम चलते फिरते अल्लाह 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 का जिक्र करते। फिर वो दिन भी आया कि मुफ्ती आज़म हिंद जब रात को सो जाते तो दिल से आवाज आती और बाकायदा आपका बैठने वाले सुनते थे कि दिल कहता था मुफ्ती आज़म हिंद का अल्लाह 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 अल्लाह। जब तुम अल्लाह का इस कसरत से जिक्र करो, वली तुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो और कसरत से जिक्र करो, दिन भर अल्लाह का जिक्र करो, सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाहु अकबर कहो, कुरान की तिलावत करो, ये भी अल्लाह का जिक्र है, दुरूद पढ़ो, ये भी अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के रसूल का जिक्र करो, ये भी जिक्र है, तिलावत ये भी जिक्र है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ना भी इबादत है, देखना भी इबादत है। दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयतों की तफसीर बयान कर दी, चौथी की वक्त नहीं है, क्योंकि आयत भी बड़ी है और टाइम भी कम है। चंद मसले रमजान जो रोजे के वो सुन ले। बहुत से लोग कहते हैं कि रोजा रखना, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रोजा नहीं रखना चाहिए, तरावी नहीं पढ़े तो रोजा नहीं रखना चाहिए। याद रखें, नमाज अलग विभाग है, रोजा अलग विभाग है, तरावी अलग है। तरावी सुन्नत है, नमाज फर्ज है, अलग फर्ज है, रोजा अलग फर्ज है। रोजा नहीं रखोगे उसका गुनाह अलग होगा, नमाज छोड़ दोगे उसका गुनाह अलग होगा, और तरावी छोड़ दोगे उसका गुनाह अलग होगा। आप रोजा रखो, नमाज नहीं पढ़ी तो आप नमाज न पढ़ने की सजा मिलेगी, आपको रोजा न रखने की नहीं मिलेगी, तरावी न पढ़ने की सजा मिलेगी, मगर रोजा न रखने की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि रोजा रखा है तो रोजा रखे। ये नहीं कि रोजा नमाज तरावी, बेशक ये करना है, नमाज भी पढ़ना है, रोजे भी रखना है, तरावी भी अदा करनी है,
और रोजे रखे तो मशक्कत करनी चाहिए, रोजे रखे तो मेहनत करनी चाहिए, और शाम को असर के वक्त तो कम से कम इतना तो होठ तो खुश्क हो जाए, एहसास तो हो जाए, ताकि इफ्तारी में इफ्तारी का जो मजा है वो आए, इफ्तारी की लज्जत हासिल हो। रोजा लगेगा नहीं तो इफ्तारी की लज्जत कैसे मिलेगी, इफ्तारी का मजा कैसे मिलेगा? इसलिए रोजे में मेहनत करनी चाहिए। और मेरे आका ने फरमाया रोजेदार को दो खुशियां नसीब होगी, एक तो तब जब वो इफ्तारी करता है, दूसरा जब वो अपने रब को देखेगा। सुभान अल्लाह, रोजेदार अपने रब का दीदार करेगा। इसलिए रोजा न छोड़े। अगर कोई बंदा रोजा रख के सोया था और दिन में क्या नाम बताया था, मैं भूल गया अभी इंग्लिश में, एहतलाम जो कुल नाइट कुल जो हो जाता दिन में, अगर रोजा रख के सोया था उस पर गुस्ल वाजिब हो गया, एहतलाम हो गया, गुस्ल वाजिब हो गया, इससे रोजा नहीं टूटेगा। रोजा रात को सोया था, एहतलाम हो गया, सुबह सहरी के वक्त उठा, अब टाइम नहीं है कि वो नहा करके फिर सहरी करे, तो उस पर वाजिब है कि सहरी कर ले, बाद में नहा करके फजर की नमाज पढ़े। लेकिन ये बहाना ना कर ले, अरे यार मैंने नहाया हुआ नहीं था, रोजा नहीं रखा, ये बहाना ना करें। रोजा रख ले, बाद में सहरी खा ले, बाद में नहा करके फजर की नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करें। बहरहाल तो अगर दिन में भी एहतलाम हो जाए रोजे की हालत में, तब भी रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर औरत को अपने अय्याम में मखसूसा आ गए रमजान के महीने में, तो उस पर बाद खा पी करके रोजा इफ्तार कर ले, और जो रोजे कज़ा है वो बाद में रखे। बहरहाल तो वो औरतों के लिए मसला है, हमारे लिए है कि रोजा नहीं टूटेगा। किसी ने खून चेक करवाया, आजकल खून चेक करवाते हैं, खून चेक करवाने से भी रोजा नहीं टूटता है। खून चेक करवा दे, इंजेक्शन लगा दे, बोतल चढ़ा दे, इससे रोजा नहीं टूटेगा। आंख में दवा डाले रोजा नहीं टूटेगा, कान में अगर दवा डाली तो रोजा टूट जाएगा। नहाने में पानी चला गया तो रोजा नहीं टूटेगा, दवा डाली तो रोजा टूट जाए तो रोजा टूट जाएगा, तो नाक में दवा डाली तो रोजा टूट जाएगा। और अगर वजू कर रहे थे और नाक में पानी चढ़ाते वक्त इतना जोर से पानी खींचा कि दिमाग तक पानी पहुंच गया तो रोजा टूट जाएगा। और रमजान में इसलिए फरमाया कि रोजा रखकर आहिस्ता से पानी नाक में चलाए, और गरगरे करने से मना फरमाया, क्योंकि गरगरे करने से पानी हलक से कुछ बूंद कुछ कतरा चले जाते हैं, पानी के चले जाने का डर है, तो रोजा टूट जाएगा। अगर अगर गरगरा, इसलिए गरगरा नहीं करना रोजे की हालत में, सिर्फ कुल्ली करना है। मिसवाक कर सकते हैं लकड़ी का, लेकिन मंजन ये मकरू लिखा है, क्योंकि इसके कुछ जर्रात है वो पेट में जाते हैं, इससे रोजा मकरू हो जाता है। इधर बाद हालात में रोजा टूट भी सकता है, इसलिए उलमा ने इसे सिरे से मकरू लिख दिया कि बरस नहीं करना है, मंजन नहीं करना है, मिसवाक कर सकते हैं। जैसे आम दिनों में सुन्नत है, ऐसी हालत रोजे में भी मिसवाक करना सुन्नत है। नहा भी सकते हैं, और सुरमा लगा सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं, दाढ़ी में बालों में तेल भी लगा सकते हैं। रोजा रखे, जैसे आम दिनों के अंदर गाली देना हराम है, रोजा रख करके गाली देना बदरजे उला हराम है, इससे बढ़ करके हराम है। और गाली देने से, टीवी देखने से, फिल्में देखने से, सीरियलें देखने से, और ये गेम खेलने से मोबाइलों पे रोजा टूटता नहीं है, मगर रोजे का नूर खत्म हो जाता है। फिर खाली इतना ही होगा, हम सुबह से शाम तक बस भूखे थे, प्यासे थे, बाकी जो रोजे का नूर जो हासिल होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। रोजे की वजह से जो दिल को जिंदगी मिलती है वो जिंदगी नहीं मिलेगी, बल्कि जहां था वही रहेगा। इसलिए रोजा रख के क्या करना है, रोजा रख के बहुत से लोग सो रहे, सोना नहीं है, रोजा रख के क्या करना है, गेम भी नहीं खेलना, रोजा रख के कुरान की तिलावत करनी है, तिलावत करनी है। इफ्तारी के अंदर, शहरी में, इफ्तारी में माँ है, बहन है, बेटी है, अपनी सौजा है जो इस पर काम करती है, उसके साथ उसका हाथ भी बटाना है। कभी सब्जी काटने कोई गुनाह नहीं, मेरे आका की सुन्नत है। झाड़ू लगा दे घर में, हुजूर की सुन्नत है। और रोटी बना दे कभी, तो भी मेरे आका की सुन्नत है। औरत का अगर करीब की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करते हैं, क्योंकि ये महीना जो है वो नुज़ुल कुरान का महीना है, ये नुज़ुल कुरान का महीना है, इसलिए कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करे, और कुरान करीम की खुद भी तिलावत करे, घर वालों को भी कहे कुरान पढ़े। नहीं आता पढ़ना, जो बड़े बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके पास बैठ जाके बेटा जोर से पढ़, मैं सुनो। पढ़ना नहीं आता तो पास में बेटा बच्चा पढ़ रहा, बाद में बैठ जाए और सुन ले, इंशाअल्लाह इस तरह आपको कुरान सुनने का भी सवाब मिल जाएगा। और नमाज न छोड़े। हमारे यहाँ क्या होता है,
हमारे का मतलब ये गरीब नवाज कॉलोनी नहीं या डूंगरपुर नहीं, पूरी जमात अहले सुन्नत, ये याद रखना। हमारे यहाँ जो हम कहते हैं इसका मतलब ये नहीं होता सिर्फ एक कॉलोनी या एक मोहल्ला, नहीं, पूरी जमात अहले सुन्नत, पूरी दुनिया के सुन्नी 8, 9, 10 रोजे हो गए, उसके बाद मस्जिद आधी, मस्जिद खाली हो जाती है। 2-3 रोजे के बाद में तो मस्जिद यूं भी खाली हो जाती है, खाली चंद नमाजी रह जाते हैं, तो और लेकिन 10वीं तरावी के बाद वो भी धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाता है। फिर 15 के बाद में तो घर वाले रह जाते हैं, मेहमान चले जाते हैं। मैं कहता हूं मेहमानों चले मत जाओ, पूरी पढ़ो। मेहमानों, पूरे मेहमान आए हो तो 1 महीना पूरा रह के जाओ। बहरहाल अल्लाह आपको तौफीक दे के पूरा साल नमाज पढ़े, लेकिन ऐसा ना करे कि हमने 10 तरावी पढ़ ली बस हो गया, 5 तरावी पढ़ ली हमने हो गया, नहीं, ये गुनाह है। ये मजाक न करें, नमाज का मजाक न करें, कुरान का मजाक न करें। एक मसला और बता दो, घरों में औरतें तिलावत कर रही है, बच्चे तिलावत कर रहे हैं, ये तिलावत का महीना करना चाहिए। इतना याद रखें, कोई अगर चारपाई पे बैठा है तो कुरान लेके नीचे न बैठे, ये कुरान का अदब है, कुरान का अदब है। कोई चारपाई पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, पलंग पे बैठा, उसको कह दे भाई मैं कुरान पढ़ रहा हूं, नीचे आ जा। चाहे शौहर हो, बाप हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, अम्मी हो, दादी हो, कोई हो, नीचे या तो उनको नीचे बिठा ले, या वो नीचे बैठने की कंडीशन में नहीं है तो आप ऊपर बैठ जाए कुरान लेके, मगर कुरान को नीचे न रखे, कुरान ऊपर रहे, हम नीचे रहे। ये कुरान का अदब है। मैं एक बार उस्मान गाजी का वाकया बयान कर चुका हूं और भी महमूद गसवी का भी वाकया बयान कर चुका हूं। बहरहाल तो ये इतना वक्त के दामन में भी गुंजाइश नहीं है कि कुरान का ये अदब करे। कुरान को बगैर वजू छूना भी हराम है, कुरान को बगैर वजू छूना हराम है, बगैर वजू पकड़ना हराम है, बगैर वजू पढ़ना हराम है। बावजू पढ़े, अदब से पढ़े और कुरान पढ़े। एक बात याद रखें, कपड़े नाइटी पहन के, टी शर्ट पहन के, फटेली टोपी पहन के कुरान न पढ़ाए। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तो हुजूर की हदीस पढ़ाते थे मदीने में। कहां के इमाम है? मदीने के इमाम है। जन्नतुल बकी में हुजूर के रोजे के सामने बाजार है, मैं उनके बाजार पे हाजिरी दे के आई इमाम मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की। सरकार इमाम मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में हदीस पढ़ाते, मस्जिद नबी में बैठ के हदीस पढ़ने से पहले नहाते थे, गुस्ल फरमाते, अच्छा लिबास पहनते, खुशबू लगाते, बेहतरीन अमामा सजाते, 2 जानू होके बैठते और हदीस जब तक पढ़ते हिलते भी नहीं थे। एक पीछू का भी वाकया, लेकिन मेरे लेकिन टाइम नहीं है। तो इस तरह हदीस पढ़ते थे। जब रसूलुल्लाह की हदीस का ही एहतराम है तो कलाम खुदा का एहतराम क्या होना चाहिए। तो अच्छा लिबास पहने, सलवार कुर्ता पहने, अच्छा लिबास पहने, खुशबू लगाए, नहाए, बावजू पहने, बेहतरीन लिबास, टोपी पहने, अमामा पहने, 2 जानू होके बैठे, फिर कुरान पढ़े। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, यो टांग ऊंची कर देते, दीवार से सहारा लेके बैठे बैठे 12 पढ़ रहे हैं। मदीने मौके में आपने देखा है।